second case, area of a curve between two abscissa. Let y is equal to fx be continuous and finite function in closed interval AB. Here we have two cases. First case, when the curve x equal to f of y lies to the right of y axis. This is the curve x is equal to f of y axis, and abscissa y is equal to c and y is equal to d. Y is equal to c is basic things. Y is equal to c represent the straight line parallel to the x axis at a distance c units from above the x-axis. Okay, so y is equal to c and y equal to d represent the straight line parallel to the x-axis. So here we have two abscissa, y is equal to c and y is equal to d, and we have to calculate the area A, B, C, D, A with the help of this. Now in this case, when we take the area bounded by the curve with y-axis, so we take the limit of integration from lower to upper. So we write c to d x dy. Since we draw the perpendicular on y-axis, so we take the value of x in terms of y from the expression of functions. फंक्शन जो भी दे रखा है वहां से आप x की वैल्यू y के टर्म्स में उल्टा उल्टा होता है। जब आप y के रिस्पेक्ट में y एक्सिस के साथ बाउंडेड रीजन निकाल रहे हैं तो x dy लिखेंगे, यानी x की वैल्यू y के टर्म्स में। और जब आप x एक्सिस के साथ में बाउंडेड रीजन निकाल रहे होंगे तो आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और उस केस में y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालेंगे। तो इन दिस केस एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ABCDA इज calculated by integral c to d x dy. And the second case, when the curve x is equal to f of y lies to the left of the y-axis, like this. This is A, B, C, and suppose this is A, this is B, C, and D. This is the y-axis, and this is x-axis, and we have to calculate this area, and this is the abscissa y is equal to c, and this is the abscissa y is equal to d. And in this case, area of the shaded region ABCDA is equal to integral c to d minus x dy. In this case, you have to take the strip in this way, like this strip. Okay, this length is x and its width is dy. तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, x dy. इसी तरह से आप इनफाइनाइट स्ट्रिप बना देंगे इक्वल विड्थ्स की, और उन सब के एरिया को जब आप ऐड करोगे तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली ऑन द सेम वे इन द प्रीवियस केसेस, लाइक दिस इज द स्ट्रिप whose length is x and width is dy. Okay, clear? So area of the shaded region ABCDA is equal to integral c to d minus x dy. Again, value of the integral is negative, but area cannot be negative, so we take the mod of integral c to d minus x dy. Okay. Now, third case is area between two curves. Area bounded by two curves y is equal to fx and y is equal to gx, which are intersected by the ordinate x is equal to a and x is equal to b. Here are two curves. This is the first curve, y1 is equal to fx,
y1 is equal to fx, and second curve y2 is equal to gx, and these are intersected at a point where ordinate is x equal to a and x is equal to b. In this case, when two area between two curves we have to find, firstly we obtain the intersecting point of both the curves. Okay, when we solve the questions, your concept is clear, but you understand here, these are intersecting points where ordinates are x is equal to a and x is equal to b. In this case, required area is where the path is decided a, p, b, q, a. Okay, for uh, our comfort, we take the path a, p, b, q, a is equal to, इस एरिया को फाइंड कैसे करेंगे, इस बड़े वाले एरिया में से इस छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे, यानी ये जो बड़ा वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ये एरिया जो एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड हो रहा है, उसमें से ये एरिया, ये जो आप देख रहे हैं ना चेक बन रहा है, ये एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको ये एरिया फाइंड हो जाएगा. ओके, तो हियर वी राइट एरिया ए बी. देखिए ए पी बी कह सकते हैं, ए पी बी एन एम ए माइनस एरिया ए क्यू बी एन एम ए, ये सब्ट्रैक्ट कर दें. अब देखिए ये वाला एरिया किससे बन रहा है, इस कर्व से. वेयर वी राइट इंटीग्रल ए टू बी y1 dx, और ये वाला एरिया किससे बन रहा है, इंटीग्रल ए टू बी y2 dx. So by property of the definite integral, you write integral a to b y1 minus y2 dx, or you say that integral a to b fx minus gx dx. Okay. Before finding the area of the curve, we discuss some coordinate geometry. एरिया फाइंड करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेनी होगी, जिसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि आपको स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन में आपकी y इज इक्वल टू mx प्लस सी. what represent the line y is equal to mx plus c? Y is equal to mx plus c represent the straight line represent the straight line whose slope is m and y-intercept is c. Like in this way, you can say that this line is this. This is the y-intercept and its slope is c. And y is equal to x represent a straight line passing through origin. Okay. Similarly, equation of a straight line passing through two given points. 2 points. Y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1. This is the equation of a straight line passing through two given points. Suppose this is the x1 y1 and this is the x2 y2. These 2 points. So equation of a straight line passing through two given point is y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1. This is the 2 points formula. And equation of a straight line in intercept form is x upon a plus y upon b is equal to 1. Like this. This is the x-intercept and this is the y-intercept. So in this case, x upon a plus y upon b represent the straight line in intercept form. तो स्ट्रेट लाइन का जानकारी होना चाहिए. फिर नेक्स्ट आता है आपका सर्किल. सर्किल में भी आपके पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. सर्किल देखिए, सर्किल के केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अब यहाँ पे देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग through
equation of circle whose center is origin 0, 0 and radius is r. Here one more thing is very important, symmetry. सिमिट्री के केस में देखिए, जैसे सर्किल का इक्वेशन हो गया, दिस इज सिमिट्री का मतलब है जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसे ही एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है। अब सिमिट्री कई तरह की होगी, मैं आपको डिस्कस करता हूँ सिमिट्री में आपको किस तरह की चीजें सामने आएंगी। देख लीजिए ये सर्किल इक्वेशन है, ठीक। अब सर्किल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या सर्किल है, सेंटर है और रेडियस है। दूसरी इक्वेशन आपकी सर्किल x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्किल है जिसका सेंटर के है और रेडियस आर है। ऐसा सर्किल x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के आर स्क्वायर, ये सर्किल इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे छोटे कॉन्सेप्ट आप ये को हेल्प करेंगे एरिया में, क्योंकि जब आप कर्व रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब आप कर्व को ट्रेस नहीं कर पाएंगे, ट्रेस नहीं करेंगे एरिया निकलेगा। क्लियर। ऐसी जनरल इक्वेशन आपने पढ़ ली है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2gx प्लस 2y c इज इक्वल टू 0। इट रेडियस r रूट g प्लस स्क्वायर माइनस c square root g plus square minus c is the radius root g plus surface minus and center coordinate minus d is the circle। फिर आपके पास है पैराबोला। पैराबोला देखिए सबसे स्टैंडर्ड पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये भी होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 भी हो सकता है। ये आप क्या कहते हैं राइट हैंड पैराबोला, ये क्या करता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। यहाँ सिमेट्री अगर किसी कर्व में y पावर इवन है, देखना वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन हो, अगर y की पावर इवन है तो इट मींस सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, यानी अगर आप इसको फुल करें तो ये वो ओवरलैप कर जाएगा। ऐसा एक्सिस के ऊपर है वैसे इमेज एक्सिस के नीचे बोथ बेस। ये हमें क्या करेगा, ये करिए एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, केवल इतना एरिया फाइंड करेंगे। तो ये हमारा क्या है और हमें कितना फाइंड करना, पूरा एरिया करना। हमारा जो एरिया होगा क्या होगा, ट्वाइस, इसको हम कैलकुलेट करेंगे उसको कर देंगे तो ये टोटल एरिया हमें मिल जाएगा। ऑन द वे इन दिस केस ये एरिया फाइंड करिए उसका डबल ये टोटल एरिया ही मिल जाएगा। तो अगर इसी कर्व में y की पावर तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। एग्जैक्टली in the same way you see here upward and inward parabola, upward parabola x is equal to 4ay and inward x is equal to minus 4ay. This is downward, this is the upward। तो आप इसका कैसे होता है, ये होता है, और इस अगर आप देखोगे तो ऐसा होता है। क्या है अब यहाँ क्या है, x की पावर इवन है, अगर x की पावर इवन है तो मतलब सिमेट्रिकल अबाउट y, यानी अगर आप इसको इस पे फोल्ड करेंगे तो इसको ओवरलैप कर जाएगी। तो अगर इस केस में हमें ये एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये एरिया फाइंड कर लेंगे। सपोज दिस एरिया इज a1, टोटल एरिया क्या है a, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली इन द सेम केस हेयर आल्सो। क्लियर। तो अगर x में इवन पावर है तो वो उल्टा पुल्टा, यानी अगर x में इवन पावर है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और y में इवन पावर है तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है।
अब आप कहेंगे कि अगर दोनों में इवन पावर है, जैसे कि हमारे इस केसेस में, सर्किल के केस में देखिए यहाँ पे x में भी इवन पावर है और y में भी इवन पावर है। इसके मतलब क्या हुआ कि ये x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। क्लियर? यानी अगर आप इसको इस पे फोल्ड करेंगे तो भी ओवरलैप कर जाएगा और इसको इस पे फोल्ड करेंगे तो भी ओवरलैप कर जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप x को रिप्लेस कर दें -x से और y को रिप्लेस कर दें -y से, तो भी कर्व की इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस केस में हमारा जो कर्व है ये अपोजिट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिकल है। ये देखिए, ये चीज अगर आप यहाँ पे करेंगे तो भी ये ओवरलैप कर जाएगा। तो ये ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, अगर हमें पूरे सर्किल का एरिया फाइंड करना है तो हम केवल इतना एरिया फाइंड करेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर एरिया ऑफ सर्किल निकालना है तो क्या करेंगे, 4a1 कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है? ऐसे ही आपकी एक और इक्वेशन है एलिप्स की। एलिप्स में भी देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी एलिप्स की इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर भी देखिए दोनों में इवन पावर है। तो आप सपोज करो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एलिप्स ले लिया है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है? तो अब आपका एलिप्स ये हो गया। बहुत अच्छा फिगर नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि अगर जैसा एक्स एक्सिस के नीचे है वैसे ही एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा। क्लियर? और x की जगह -x और y की जगह -y रखेंगे तो भी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए अपोजिट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिकल है। तो अगर इस इलिप्स का एरिया निकालना है तो भी आप यही काम कर सकते हैं, इतने क्वेश्चन का एरिया निकालिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? एक और इक्वेशन इस तरह की सिमेट्री भी होती है कि अगर हमें x की जगह -x कर दें और y की जगह -y कर दें, जैसे मान लीजिए सपोज हमने कोई इक्वेशन लिख दी x क्यूब, सपोज ये हमने लिख दी xy इज इक्वल टू c स्क्वायर, सपोज हमने ये लिख दी। अब अगर हम x की जगह -x और y की जगह -y कर दें तो भी कर्व की इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है? तो ये इसमें x की जगह अगर हम -x कर दें और y की जगह -y कर दें तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कर्व की इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि दिस इज सिमेट्रिकल इन दिस इज आल्सो सिमेट्रिक अबाउट इन अपोजिट क्वाड्रेंट। तो x की जगह -x और y की जगह -y करने पे अगर कर्व की इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होते हैं। यानी जितना एरिया ये होगा, मान लो सपोज करो कि हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये कुछ ऐसे बना होगा, ये ऐसा एरिया फाइंड करना है तो ये उतना ही एरिया होगा जितना ये होगा। ठीक है? ठीक है? तो और अगर हमें x और y इंटरचेंज करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो वो क्या होते हैं, वो y इज इक्वल टू एक्स के अपोजिट, ये लाइन दे रखी है, ये इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल होते हैं। तो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है? तो कितने तरह की सिमेट्री हो गई कि अगर हमारा x में इवन पावर है तो वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, y में इवन पावर है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, x को अगर हम -x से रिप्लेस कर दें और y को -y से रिप्लेस कर दें और इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। इस केस में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। और अगर x और y की पोजीशन इंटरचेंज कर दें और उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ठीक है? तो दीज आर सिमेट्री विच हेल्प टू फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। नाउ वी सॉल्व द डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट केसेस में हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो we take some examples for your understanding. Do you see here?